Hello friends, today we are going to see the important concept regarding about the atom, that is the structure of atom. For this purpose there are different types of models are available: Rutherford's atomic model, Bohr's atomic model. Bohr's atomic model is nothing but the assumptions based, that is the drawbacks of Rutherford's atomic model can be overcome on Bohr's atomic model. First we see the first experiment before Rutherford's atomic model, that is nothing but scattering of alpha particles. That is nothing but scattering of alpha particle from a thin gold foil. If we consider a thin gold foil and if we incidence a beam of alpha particle, intense beam of alpha particle on a thin gold foil or a sheet, then how the alpha particles are scattered? Then how the alpha particles are scattered from this gold foil, that we see by the Rutherfords initially. So in this experiment there is a scattering of alpha particle. If we observe the diagram, so if here we consider the atom, and when a beam of alpha particle is incident on a thin gold foil, what will happen? Large number of alpha particles are passes through the foil without any deflection. वो जो thin gold foil है, उस thin gold foil के अंदर से large number of alpha particle यहाँ पे without any deviation क्या हो रहे हैं, without any reflection क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं. So most of the alpha particles are passed through the gold foil or atom without any deviation or deflection. This is the first point. Second point, few of the alpha particles are deflected by 90 degree or greater than 90 degree. कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे मिले कि जो अल्फा पार्टिकल है उनका 90 डिग्री या ग्रेटर देन 90 डिग्री से क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ. थर्ड पॉइंट, one of the alpha particle out of 20,000 alpha particle, one of the alpha particle out of 20,000 alpha particle gets deflected through 180 degree, that is the direction is completely reverse. अगर एक अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन में आ रहा है तो उसकी डायरेक्शन कंप्लीटली यहाँ पे क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है. जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि एक अल्फा पार्टिकल इधर से आ रहा था और उसकी डायरेक्शन यहाँ पे कंप्लीटली क्या हो गई है, रिवर्स हो गई है. तो ऐसे कितने पार्टिकल मिलेंगे, एक पार्टिकल मिलेगा. कितने पार्टिकल में से, 20,000 कि 20,000 पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल अगर आप थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो उसमें से एक अल्फा पार्टिकल जो रहेगा वो 180 डिग्री से क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी उसकी डायरेक्शन कंप्लीटली रिवर्स हो जाएगी. तो स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल वॉज परफॉर्म बाय रुदरफोर्ड initially, and at that time the observations from this experiment was done. There are three types of observation. Number one, or three observation. Number one, most of the alpha particle passes through the atom without any deflection. उनका कहीं पे भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है. 99% अल्फा पार्टिकल जो है वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या हो रहे हैं, एटम के अंदर से पास हो रहे हैं या थिन गोल्ड फॉइल के अंदर से पास हो रहे हैं. फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल, सेकेंड पॉइंट जो उनको ऑब्जर्व हुआ, तो सेकेंड पॉइंट जो उन्होंने ऑब्जर्व किया उसमें ऐसा पता चला कि फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड थ्रू 90 डिग्री और ग्रेटर देन 90 डिग्री. कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे मिले कि जिनका डिफ्लेक्शन 90 डिग्री या ग्रेटर देन 90 डिग्री से यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुआ है. एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन इज दैट वन ऑफ द अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल, one of the alpha particle out of 20,000 alpha particle gets completely reverse, that is its deflection is completely 180 degree. Its deflection is completely 180 degree. तो ये तीन ऑब्जर्वेशन उनको इस अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग के एक्सपेरिमेंट के ऊपर से मिल गए. ये जो तीन ऑब्जर्वेशन मिले, ये तीन ऑब्जर्वेशन के ऊपर से उन्होंने यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया, तीन पॉइंट्स मेंशन किए ऑब्जर्वेशन के ऊपर से. पहला पॉइंट कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल अगर विदाउट एनी डिविएशन एटम के अंदर से पास हो रहे हैं, इसका मतलब एटम मस्ट बी एक्सट्रीमली हॉलो एंड इट हैज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एम्प्टी स्पेस अवेलेबल इन इट.
इसका मतलब क्या है, अगर एटम के अंदर से 99% पार्टिकल अगर विदाउट एनी डिविएशन पास हो रहे हैं, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास हो रहे हैं, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन और गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन, इट मीन्स दैट एटम मस्ट बी एक्सट्रीमली hollow and it has a large amount of empty space available in it. इसका मतलब एटम कैसा है, हॉलो है, उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एम्प्टी स्पेस क्या है, अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से इजीली अल्फा पार्टिकल विदाउट एनी डिविएशन क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। ये पहला ऑब्जर्वेशन, मतलब पहला जो ऑब्जर्वेशन था उसका ये कंक्लूजन निकाला गया। सेकंड कंक्लूजन, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय 90 डिग्री और ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसके लिए उन्होंने पॉइंट ये किया कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो 90 डिग्री या ग्रेटर देन 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो इनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, electrons are not responsible for the deflection of alpha particle. Why? Because if we consider the electron, then electron is nothing but -1 E0. इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है और उसका मास अप्रोक्सीमेटली 0 है, निग्लिजिबल है। अप्रोक्सीमेटली 0 मतलब निग्लिजिबल है यहाँ पे, तो E -1 0 है। जबकि He224 अगर अपन लेंगे, हीलियम अगर अपन लेते हैं, अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लिया, so alpha particle is nothing but helium, so that's why alpha particle is nothing but He224। यहाँ पे क्या हो जाएगा, He224 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अल्फा पार्टिकल अगर अपन कंसिडर करते हैं तो उसके ऊपर दो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और इसका जो मास है वो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन है। So mass of alpha particle, it is equal to 4 times mass of proton or it is equal to 4 times mass of neutron, because mass of proton and mass of neutron is approximately equal. प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास एग्जैक्टली कैसा है, इक्वल है। कैसा है, एग्जैक्टली इक्वल है। सिर्फ न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, उसके ऊपर किसी भी टाइप का चार्ज नहीं है, जबकि प्रोटॉन अगर अपन कंसिडर करेंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। मतलब अल्फा पार्टिकल अगर अपन कंसिडर करते हैं तो उसके ऊपर डबल यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और उसका मास 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन है। जबकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 यूनिट निगेटिव चार्ज है और उसका मास अप्रोक्सीमेटली 0 है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल ग्रेटर देन 90 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन हुआ है 90 डिग्री या ग्रेटर देन 90 डिग्री से, इसके लिए एटम के अंदर जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास काफी स्मॉल है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक सिंगल निगेटिव चार्ज है, जबकि हीलियम के पास में 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और हीलियम का मास 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन या 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन है। इन शॉर्ट, alpha particles are too much heavier. Mass of alpha particle is very large as compared to mass of electron. Mass of alpha particle is far large as compared to mass of electron. Hence, electrons are not responsible for the deflection of helium particle, that is alpha particle. ये हो गया सेकंड कंक्लूजन। थर्ड, यहाँ पे जो है एक अल्फा पार्टिकल जो है वो 180 डिग्री से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक अल्फा पार्टिकल जो है वो यहाँ पे 180 डिग्री से क्या हो रहा है, कंप्लीटली रिवर्स हो रहा है। 180 डिग्री से कंप्लीटली रिवर्स हो रहा है, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन कंप्लीटली रिवर्स हो रही है। ऐसे सिचुएशन में अब अल्फा इलेक्ट्रॉन अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है? सो अ हेवी पॉजिटिव चार्ज इज अवेलेबल इनसाइड द एटम। A heavy positive charge is available inside the atom and which is available at the central core part, which is available at the central core of the atom। कि ये जो एटम है इसका जो सेंट्रल कोर पार्ट है यहाँ पे एक हेवी पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है और वो हेवी पॉजिटिव चार्ज और ये अल्फा पार्टिकल जो है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है। ये पॉजिटिव में यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। सो अल्फा पार्टिकल इज अ हेवी पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस के वहां पे जो है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, हेवी पॉजिटिव चार्ज है और ये दोनों में क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन हो रहा है और इस रिपल्शन के वजह से वन ऑफ द अल्फा पार्टिकल गेट डिफ्लेक्टेड, वन ऑफ द अल्फा पार्टिकल गेट्स डिफ्लेक्टेड आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल।
कि एक अल्फा पार्टिकल 20,000 अल्फा पार्टिकल में से कंप्लीटली उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है। ये पॉइंट उसके ऊपर से ऑब्जर्व किया गया और उसका कंक्लूजन निकाला गया। तो सेंट्रल कोर पार्ट जो है, जहां पे हेवी पॉजिटिव चार्ज यहां पे अवेलेबल है, दिस हेवी पॉजिटिव चार्ज इज कंसिडर्ड एज ए न्यूक्लियस ऑफ द एटम। इसको क्या कंसिडर किया गया, एटम का न्यूक्लियस। यहीं पे एटम का टोटल मास भी क्या हुआ है, कॉन्सेंट्रेट हुआ है, ऐसा रुदरफोर्ड ने यहां पे कंसिडर किया, कंक्लूजन निकाला। सो 3 पॉइंट्स एंड 3 कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन क्या निकला, एज लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर passes through the atom without any deviation, it means atom must be extremely hollow and large amount of empty space available in it. Few alpha particles are deflected through 90 degree or greater than 90 degree, but electrons are not responsible for the deflection of alpha particle. Why? Because the charge of electron is -1, that is one single negative charge, and mass of the electron is 0. Instead of alpha particle अगर अपन लेंगे तो alpha particle is nothing but helium nuclei, that is He224. So mass of alpha particle is 4 times mass of proton or mass of neutron, which is too much large as compared to mass of electron, and the charge of alpha particle is 2 times double positive charge, that is a double positive charge. तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स यहां पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्शन करने के लिए 90 डिग्री या ग्रेटर देन 90 डिग्री के लिए। लेकिन डिफ्लेक्शन तो हो रहा है, तो डिफ्लेक्शन कौन कर रहा है, तो ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है यहां पे, ये एक सेंट्रल कोर पार्ट में एक हेवी न्यूक्लियस है या हेवी पॉजिटिवली चार्ज अवेलेबल है, और वो जो सेंट्रल हेवी पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है, उस हेवी पॉजिटिव चार्ज और अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग रिपल्शन हो रहा है, और उस रिपल्शन के वजह से अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड थ्रू 90 डिग्री और ग्रेटर देन 90 डिग्री और स्ट्रिक्टली 180 डिग्री। This central core part of the nucleus, this central core part of the atom is considered as a nucleus of the atom, where the total positive charge of the atom is concentrated. At the same time, the whole mass of the atom is also concentrated at the center of the atom. मतलब एटम का जो सेंट्रल कोर पार्ट है, वहां पे एटम का टोटल मास भी कॉन्सेंट्रेट हुआ है, और एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज जो है, एटम के पास में जो भी इनसाइड में अवेलेबल है, वो टोटल पॉजिटिव चार्ज भी क्या है, वहां पे कॉन्सेंट्रेट हुआ है। तो इस तरीके से 3 पॉइंट्स के ऊपर, 3 ऑब्जर्वेशन के ऊपर 3 कंक्लूजन्स रुदरफोर्ड ने यहाँ पे फाइंड आउट किए, और उसके ऊपर से रुदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल यहाँ पे क्या किया, फॉर्म किया। एटॉमिक मॉडल के अंदर उसने क्या बताया रुदरफोर्ड ने, पहला पॉइंट, एटम मस्ट बी एक्सट्रीमली हॉलो एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एम्प्टी स्पेस अवेलेबल इन इट। एटम के अंदर क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ एम्प्टी स्पेस अवेलेबल है, और इसलिए वो एक्सट्रीमली हॉलो है, ये उसका पहला अजम्पशन। सेकेंड पॉइंट इज दैट एटम, द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द एटम। न्यूक्लियस की रेडियस कितनी है, 10⁻⁻15 मीटर, और एटम की रेडियस कितनी है, 10⁻⁻10 मीटर। सो इट इज वेरी लार्ज। न्यूक्लियस की रेडियस कैसी है, काफी स्मॉल है, किसके कंपैरिजन में, एटम के कंपैरिजन में। न्यूक्लियस की रेडियस है 10⁻⁻15 मीटर, और एटम की रेडियस है 10⁻⁻10 मीटर। सो न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द एटम। न्यूक्लियस इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द एटम, वेयर द होल मास ऑफ द एटम इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, दिस इज सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, इनसाइड द एटम, ये जो एटम है इसके अंदर अगर अपन लेंगे, ये न्यूक्लियस अगर अपन यहाँ पे कंसिडर करते हैं, तो इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द एटम, all the electrons inside the atom perform circular motion, and the necessary centripetal force required for circular motion, the necessary centripetal force required for circular motion is provided by electrostatic force of attraction between the nucleus, that is the positive charge on the nucleus, and the negatively charged electron. इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो निगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट हो रहा है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है टू परफॉर्म इट्स सर्कुलर मोशन।
तो इलेक्ट्रॉन की मोशन सर्कुलर मोशन है, इसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने थर्ड पॉइंट के अंदर यहां पे मेंशन किया। फोर्थ पॉइंट, यहां पे अगर आप देखेंगे तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहे हैं और न्यूक्लियस यहां पे सेंट्रल कंसिडर किया हुआ है, सेंट्रल कोर पार्ट कंसिडर किया हुआ है। दिस कंसेप्ट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द प्लैनेटरी सिस्टम। जैसे कि प्लैनेटरी सिस्टम में सन कहां पे अपन कंसिडर कर रहे हैं, सेंटर में कंसिडर कर रहे हैं, और उसके सराउंडिंग में सभी प्लैनेट्स क्या हो रहे हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में या सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहे हैं। तो दिस कंसेप्ट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द प्लैनेटरी ऑर्बिट सिस्टम। दिस इज द फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट, यहां पे 4 पॉइंट हो गए। एटम मस्ट बी एक्सट्रीमली हॉलो। एटम तो एक्सट्रीमली हॉलो और टोटल पॉजिटिव चार्ज उसके सेंट्रल पार्ट में है। तो ये जो सेंट्रल पार्ट में यहाँ पे उसका टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल मास है, ये यहाँ पे सेंट्रल पार्ट में यहाँ पे क्या है, अवेलेबल है। एंड दिस पार्ट इज कंसिडर्ड एज ए न्यूक्लियस ऑफ द एटम। एटम का जो टोटल मास है, वो टोटल चार्ज है, वो टोटल कहाँ पे अवेलेबल है, उसके सेंट्रल कोर पार्ट में अवेलेबल है, एंड दैट वी कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस। दिस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एटम के ऊपर किसी भी टाइप का चार्ज नहीं है। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, बट एटम इज एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम कंप्लीटली इलेक्ट्रिकली कैसा है, न्यूट्रल है। एटम के ऊपर किसी भी टाइप का पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अवेलेबल नहीं है। इज दैट क्लियर? सो ये हो गए 5 पॉइंट्स, और ये 5 पॉइंट्स को उसने क्या नाम दिया, रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रुदरफोर्ड्स को एटम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिली या जो भी अजम्पशंस उन्होंने कंसिडर किए, उसको उसने नाम दिया रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है? सो दिस इज अबाउट द रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। इज दैट क्लियर? देन वी सी द ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक क्या है? तो यहां पे देखिए ड्रॉबैक्स। First drawback, according to Rutherford's atomic model, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, मोशन परफॉर्म कर रहा है। अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, and its circular motion is done due to electrostatic force of attraction between the electron and the nucleus। न्यूक्लियस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो निगेटिव चार्ज है, ये दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट हो रहा है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होने की वजह से इसकी मोशन कैसी है, सर्कुलर मोशन है। अब ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, बराबर है, ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इस कंडीशन में इसके वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली यहां पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। एज वी नो दैट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कुलर पाथ। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट इज अलोंग द टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कुलर पाथ। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, ये यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। एज इट्स डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली गोज ऑन चेंजिंग ड्यूरिंग इट्स मोशन, इट परफॉर्म्स एक्सेलरेटेड मोशन। इसकी मोशन कौन सी हो गई, एक्सेलरेटेड मोशन हो गई। एक चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, उसकी मोशन कौन सी है, एक्सेलरेटेड मोशन है। और एक्सेलरेटेड मोशन है इसीलिए ये कंटिन्यूअसली एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा। यहाँ पे एनर्जी रेडिएट करेगा, यहाँ पे एनर्जी रेडिएट करेगा, यहाँ पे एनर्जी रेडिएट करेगा, यहाँ पे एनर्जी रेडिएट करेगा। सो एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस, एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस और द ऑर्बिट, ऑर्बिट के किसी भी पॉइंट पे जब अवेलेबल है तो वो कंटिन्यूअसली एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा। और अगर वो कंटिन्यूअसली एनर्जी रेडिएट करेगा अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन, according to electromagnetic theory of radiation, when a certain charged particle is performing accelerated motion, then it radiates energy।
then it radiates energy. As this electron performs accelerated motion, it also radiates energy. As it radiates energy, the energy of the electron gradually goes on decreasing and therefore it does not maintain its circular path. इसके वजह से ये इसका सर्कुलर पाथ मेंटेन नहीं कर पाएगा और इसकी एनर्जी कंटिन्यूअसली कम होने के वजह से इसका जो पाथ है, इंस्टेड ऑफ सर्कुलर इट बिकम्स अ स्पाइरल पाथ. इट बिकम्स अ स्पाइरल पाथ. उसकी एनर्जी कंटिन्यूअसली कम होती जाएगी और ये स्पाइरल पाथ परफॉर्म करते करते जब उसकी एनर्जी कंप्लीटली जीरो हो जाएगी, जब उसकी एनर्जी कंप्लीटली क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो वो न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे फॉल हो जाएगा. सो अल्टीमेटली इट फॉल इनटू न्यूक्लियस. Ultimately, it fall into the nucleus. As it fall into the nucleus, atom becomes unstable. Atom becomes unstable and it is contradictory. कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी है. अपने को पता है एटम नेचर में कैसा है, स्टेबल कंडीशन में है. लेकिन यहाँ पे अगर अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो सर्कुलर नहीं रह सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये चार्ज पार्टिकल है, ये एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रहा है और एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म करने की वजह से अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इट रेडिएट्स कंटिन्यूअसली एनर्जी. वो कंटिन्यूअसली एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा एंड देयरफॉर द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन नेवर सर्कुलर, इट बिकम्स अ स्पाइरल. ओके, इट बिकम्स अ स्पाइरल ऑफ डिक्रीजिंग रेडियस and finally when it loses its total energy, ultimately it fall inside the nucleus, into the nucleus and thereby atom becomes unstable. तो यहाँ पे atom unstable हो जाएगा. As atom become unstable, it is a contradictory. क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा, क्योंकि अपने को पता है एटम नेचर में कैसा है, स्टेबल कंडीशन में है. तो ये हो गया उसका पहला ड्रॉबैक. सेकंड ड्रॉबैक, यहां पे इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन नहीं परफॉर्म कर रहा क्योंकि वो कंटिन्यूअसली एनर्जी रेडिएट कर रहा है. तो ये कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट कर रहा है ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे एक रेडिएशन इमिट किया, यहाँ पे एक रेडिएशन इमिट किया, तो ये फ्रीक्वेंसी है ν1, ये फ्रीक्वेंसी है ν2. तो इस तरीके से कंटिन्यूअसली एनर्जी वो रेडिएट कर रहा है ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, मींस डिफरेंट वेवलेंथ. डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है तो इसका मतलब नेचुरली डिफरेंट वेवलेंथ भी रहेंगी. तो एनर्जी और वेवलेंथ इनका अगर अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं, if we plot a graph of energy and wavelength, suppose this is nothing but E lambda and this is nothing but a wavelength. Along the y-axis we consider the wavelength, energy of the wavelength, and along the x-axis we consider the wavelength of the radiation. Then ये अपने को क्या मिलना चाहिए, स्पेक्ट्रम कैसा मिलना चाहिए, कंटिन्यूअस मिलना चाहिए. स्पेक्ट्रम कैसा मिलना चाहिए, कंटिन्यूअस मिलना चाहिए. दिस इज अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. दिस इज अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. यहां पे कोई भी रेडिएशन अब्सेंट नहीं चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ईच एंड एवरी पोजीशन पे एनर्जी इमिट कर रहा है. यहां पे एनर्जी इमिट करेगा, यहां पे एनर्जी इमिट करेगा, यहां पे एनर्जी इमिट करेगा. तो ऑर्बिट के किसी भी पोजीशन पे जब इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो वो कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट कर रहा है. इसीलिए ऑल टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ऑल टाइप ऑफ वेवलेंथ जो है वो यहां पे अवेलेबल चाहिए. तो ये जो स्पेक्ट्रम होगा ये कैसा मिलना चाहिए, कंटिन्यूअस मिलना चाहिए. इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का जो स्पेक्ट्रम है वो कैसा मिलना चाहिए, कंटिन्यूअस मिलना चाहिए. बट प्रैक्टिकली व्हेन वी ऑब्जर्व, इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम वी आर गेटिंग अ लाइन स्पेक्ट्रम. दिस इज ई लैम्बडा, दिस इज 0, दिस इज वेवलेंथ. ठीक है, तो यहां पे एक रेडिएशन मिला, यहां पे एक रेडिएशन मिला, यहां पे एक रेडिएशन मिला. ठीक है, और ये यहां पे एक रेडिएशन मिला. तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूअस एनर्जी का स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, बट वी आर गेटिंग अ लाइन स्पेक्ट्रम. यहां पे इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी रेडिएट किया, यहां पे इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी रेडिएट किया, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी रेडिएट किया और यहां पे भी इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी रेडिएट किया. बट बिटवीन दीज टू स्पेक्ट्रल लाइन देयर इज नो इमिशन ऑफ एनर्जी बाय द इलेक्ट्रॉन. हेंस वी आर गेटिंग अ लाइन स्पेक्ट्रम. दिस इज अ line spectra or line spectrum, and this is nothing but a continuous. This is a continuous spectra. मतलब मिलना कौन सा चाहिए था, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा. मिल रहा कौन सा है,
लाइन स्पेक्ट्रा। तो ये इनके बीच में की वेवलेंथ कहाँ गई, ठीक है ना। तो ये जो दो ड्रॉबैक्स है, ये दो ड्रॉबैक की वजह से रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। ओके, ये जो दो ड्रॉबैक्स है, ये दो ड्रॉबैक की वजह से रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। एक तो इलेक्ट्रॉन की मोशन सर्कुलर नहीं रहती अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन, क्योंकि उसकी एनर्जी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, रेडिएट हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। सो इंस्टेड ऑफ सर्कुलर पाथ इट मेंटेन्स अ स्पाइरल पाथ। सेकेंड, अगर एनर्जी कंटिन्यूअसली रेडिएट हो रही है तो एनर्जी का जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस मिलना चाहिए था, λ1, λ2, λ3, λ4 सभी टाइप की वेवलेंथ यहाँ पे मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऐसा मिल रहा है क्या, नहीं। एक वेवलेंथ मिल गई, फिर उसके बाद में बीच में की वेवलेंथ अब्सेंट है, फिर वेवलेंथ मिल गई, फिर बीच में की वेवलेंथ यहाँ पे अब्सेंट है। सो इंस्टेड ऑफ अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा वी आर गेटिंग अ लाइन स्पेक्ट्रा एंड दैट्स व्हाई रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल गेट्स फेल्यूर। ओके, थैंक यू।